purpose itself was started to invite the artists from smaller cities, because Bombay, Delhi, Bangalore वाले, हैदराबाद वाले को तो वैसा भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है. They are in the city. They can exhibit, they can go to gallery and exhibit. The purpose was to get the artists from smaller spaces in the urban centers, metro cities, and that again in a very small amount. 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 में शो नहीं होता है. तो that was the purpose. Society, as I said, we cannot even break even. We don't even reach to break even if you see our accounts for many years. The show purpose was to get the artists on the platform who are on the periphery, who are sitting in the remote places, don't get the platform. And response, as I said, such a fantastic, this is our 11th edition. From first edition till this edition, 2 to 3 months before, 1 month or 2 months before, sometimes 3 months before, we have to stop the participation because वो full हो जाता है. So response is fantastic. Rather, I should thank these people who are coming in such a with such a big zeal to present their work to the wider audience. और वो audience को, so don't get depressed that artists are visitors are not coming here every day. So you go to any damn gallery in India. I have visited all the galleries, and in a year I visit almost every gallery, at least public gallery in Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bangalore. Footfalls are like scattered only. Nowadays you have to reach out to the artists. Private galleries also same, opening day some people will come. So आपको यहाँ लाने के पर्पज़ ये है कि आपको उनके पास पहुँचाना है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फिजिकल एग्जीबिशन, and of course to get you the first hand experience of exhibition. वो एक अलग चीज़ होती है, to have the experience of exhibition. There are so many first timers, there are so many experienced people also who are sitting, who are repeatedly participating. So it works in a both way for the society. It's an honor to have these people coming from smaller cities and presenting their works here. Next art carnival dates are, I think, yet to be decided, because in between we have the annual art exhibition. Bombay Art Society's 133rd annual art show is coming from 11 to 17 March. Before that, in between, we will explore the possibility we can have. Otherwise, that annual art show itself is a huge mega show. And if you see our Bombay Art Society's annual art show, which is happening from 1889, society was founded in 1888. Show started in 1889, which used to happen in that time there was no Jahangir Art Gallery or any gallery in the country. So that used to happen in JJ School of Art, or sometime Town Hall, or sometime Old Secretariat. And then Jahangir Art Gallery came, it started there. So if you check the history of that annual art show which is coming now, all these names which I took, S.S. Raja, जिनका 61 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड हुआ है लास्ट ईयर, अमृता शेरगिल जिन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, एस.एस. रजा, अमृता शेरगिल, हेमेंद्र मुजुमदार, प्रभाकर कोलते, मोहन सामंत, all these big masters have received the award from Bombay Art Society annual show in their formative years, when they were not S.S. Raja or Amrita Shergill. That time she was a young formative artist, and of course we were not there that time, but our forefathers were there who bring this Bombay Art Society from 1888 till today. So that show is also very important. I will ask all of these people to try there also. Nothing works, but that show, as I said, out of 3,500 artworks, 250 get selected, and that selection itself is award. Award तो मिलते हैं उसमें, already some 30-40 awards are there. Some award money itself in annual art show is 7 lakh rupees total. Some 30-40 awards are there. So art carnival dates we will announce soon online. सर आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? I think we already discussed. Yeah. एक गैलरी का कंसेप्ट आया था, चितारी नाम से मैंने स्टार्ट किया था. That was first art gallery in Navi Mumbai. So मेरा कंसेप्ट ये था यहाँ पे कि काफ़ी साल से मैं फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसमें से मोस्टली हम लोग डिपेंड थे कुछ 15-20% का जो क्लाइंटल है उसी के ऊपर हम लोग डिपेंड थे. तो मेरा कंसेप्ट वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए
प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जाए ताकि पेंटिंग सेल करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो। तो उस तरीके से हमने उसको स्टार्ट किया था और वहाँ पे मैंने 200 प्लस क्लाइंटल तैयार किया था जो नया कंप्लीटली नवी मुंबई का था। उसमें से बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे पूछते थे कि कौन से टाइप का वर्क वहाँ पे सेल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे, अमेचर आर्टिस्ट भी थे और मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट से लेके लैंडस्केप तक सभी पेंटिंग्स वहाँ पे सेल होते थे। बस एक था कि वहाँ पे पेंटिंग सेल कैसे करना, उसका एक स्ट्रेटेजी बनाया जाता था कि कौन से पेंटिंग्स है तो किसको अप्रोच एग्जैक्टली, और उसी हिसाब से हम लोग उसको सेल करते थे। मोस्टली एक एग्जीबिशन में एवरेज पकड़े तो 4-5 पेंटिंग सेल होती थी वहाँ पे। तो एक्चुअली जो इन सभी ने यहाँ पे जो बताया आपको, तो एक्चुअली मेरे मन में भी वही था आज, और उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा 2 पॉइंट में बताऊंगा कि सर ने जैसे आर्टिस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया और एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया कि आप अपने आप को हॉबी आर्टिस्ट मत कहो, कॉपी आर्टिस्ट इज डिफरेंट, जो रेफरेंस लेके और काम करते हैं। लेकिन आपके जो कंसेप्ट है ये इनवर्ट जर्नी रहता है, तो वहाँ के जो आपके कंसेप्ट है प्रेजेंट है, भले उसमें अभी मैच्योरिटी कम है लेकिन उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर उस प्रोसेस को आप रोकोगे, उसको ज़्यादा क्वेश्चनिंग करोगे तो वो प्रोसेस वहाँ पे रुक जाएगी और जो आगे होना है वो वहाँ पे पीछे रह जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअस पेंटिंग करना पड़ेगा, जो भी आए मन में थॉट्स उसको प्रेजेंट करते रहे। वेस्टेज होगा तो वेस्ट निकल जाएगा, सबसे बेस्ट होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू काम करते हैं, बस उसमें जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे उसी में से सॉल्व होती जाए। आप क्वेश्चनिंग करोगे तो दूसरों पर डिपेंड रहोगे, और डिपेंड रहोगे तो आपके जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उस प्रोसेस को आगे बढ़ा, कंटिन्यू करो बस। बराबर को अपने एक लिमिट रख के आते हैं, उनका बजट भी रहेगा। मैं भूल जाऊंगा, सुरेश ने इतना अच्छा पॉइंट कहा तो मैं बीच में बोल रहा हूँ। He is saying never call yourself hobby artist. The reason is, if you count today India's top 20 master artists, जो अभी है नहीं, उसमें से काफ़ी they are no more, they passed away. If you count 20 of our top master artists, almost half of them never went to any art school, art college. M.F. हुसैन कोई आर्ट स्कूल में गए नहीं है। कृष्ण खन्ना never went to any art school. भूपेन खक्कर never went to any art school. We were talking about Sudhir Patwardhan, Dr. Sudhir Patwardhan, who is in Thana, he sells the artworks in auction houses for 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh. Never went in any art school. And this list is very big. So art school में क्या पढ़ाएंगे? We are not belittling the art education. Education is must. But what they will teach? Medium. Medium. University will teach you the language. They will not teach you how to write the poetry. तो पोएट्री आपने ही लिखनी है, वो भाषा सिखा देंगे आपको पढ़ने का। तो सुरेश का मतलब वही है, यू आर नॉट सेल्फ टाट आर्टिस्ट। आपने सीख लिया ना, सीख लिया, दैट्स इट। बहुत हो गया तो सेल्फ इंस्पायर्ड बोल सकते, बट क्यों बोलना है? आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट, नो प्लस नो माइनस। वेरी वेल पॉइंट सुरेश, थैंक यू। क्योंकि बाद में जो आर्टिस्ट बाद में कहता है कि मेरा पेंटिंग क्यों नहीं बिकता है, ये मतलब कहीं भी अवेयरनेस कैंप या कोई भी चीज़ रखता है तो उस टाइम पे हर आर्टिस्ट का सवाल आता है कि सर मेरा पेंटिंग नहीं बिकता है। क्योंकि कोई भी गैलरी इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, क्योंकि मैं आपका बेच के दूंगा, आप रखो हमारे पास कंसाइनमेंट में जो चीज़ रखो। वी आर ट्राइंग टू सेल, जैसे अपने कस्टमर है हम अपने बायर को लाते हैं और ट्राई करते हैं उनकी। और मैं एक्चुअली हमेशा ये प्रेफर करता हूँ, मेरे जो गैलरी में जो आर्टिस्ट है जो भी रखता है, मैं आर्टिस्ट को मना करता हूँ आप लोग मत आओ। उसका रीज़न ऐसा है कि मैंने इतने सारे एग्जीबिशन किया तो मैंने देखा हर आर्टिस्ट एक मतलब बायर के पीछे लग जाता है कि ये मेरा ले लो, फिर 2 मिनट के बाद वो अपना कार्ड उसको देगा। मैंने सब स्टडी किया है इसके अंदर, फिर वो सोचते फिर उसके डायरेक्ट काम हो जाए।
हर हर आदमी चाहते हैं अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ये ना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जो हर आर्टिस्ट की जो खुद के जो वैल्यू है वो नीचे गिराता है। तो ये मैंने एक नोटिस किया इतने साल से एक्सपीरियंस में। बाकी जो है देखो, वर्क कहता है आपका क्या है, एक्सपीरियंस है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हर आदमी को हर चीज़ समझना जरूरी भी नहीं है। हर जो बायर है हो या कोई देखने वाले हैं या कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि उनको हर चीज़ समझ में आता है। कोई आर्टिस्ट है जो रियलिस्टिक में काम करते हैं, कोई बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट में करते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको सब समझे। पर हर चीज़ का अपना एक बजट बना के आता है बायर, ये तो मैंने देखा हो इतने साल जाएगी नहीं खाली अपने सामने जो है वो कुछ भी बताएगा कि ये क्या है, किसका है, वो सब बात करता है। लेकिन बस आर्टिस्ट को मेरा इतना कहना है कि अपना खुद का वैल्यू नहीं गिराना है, ये अपने एक लेवल पे उसको हमेशा कौन क्या करते है वो छोड़ दो, हम क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना है। कि आर्ट स्कूल में जाके ये आदमी सीखेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि आर्ट स्कूल में जाने से पहले ये मैं देखा हूँ कि अपने आप को ड्राइंग या कोई चीज़ को आना चाहिए। बाकी जो उनका सिखाना है वो मैक्सिमम कलर्स में ये चीज़ का आपका मिक्सिंग का ही मैक्सिमम जो मीडियम है वगैरह, बस यही है। सब लोग अच्छे वर्क है। अभी तो जितना भी देखा है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अभी लास्ट 2 साल से मैं आर्ट कार्निवल के साथ में जुड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि बेटर बहुत इम्प्रूव हुआ है इस बार का जो वर्क देखे। थैंक यू वेरी मच tonight, and it's like an honor for me to be over here. Now, it's a very nostalgic thing for me. Like, I am actually calling myself an accidental painter, you know, because I've been working in the corporate for the last 25 years. So there's a lot of stress in the corporate life. I wanted to do something different. So I accidentally met my teacher from my NGO perspective, and I didn't know that she was an artist. So under her training, it was like talking to a teacher going back to school for me for 30 years back. So it was a new thing for me. I cultivated myself that I can be a painter. Now I remember that when I was in 3rd or 4th, I had participated in a competition called Shankar International, which was in Delhi. Now it reminds me that I can do painting. So a lot of motivating words that has come, and this is a very good platform where we can display our paintings. The basic thing what I have learned in this 5 years, that you should talk to your own self, and that talking should be displaying on the paint. So whatever you do it for yourself, not for others. Whether people recognize you or don't, you do your own painting, you do with your own class, and the acceptance will come on its own way. So that's what I wanted to share. And when I do painting, though I'm in a corporate world at a very senior level, when I do painting, it it helps me to de-stress myself, devoid from the entire world. In fact, I'm looking for starting an art cafe also. That's what Narendra and me are having a dream, and taking insights from these two gentlemen who have got a good platform over here, where we all can display our art, we all can show our value. So I would only request, please recognize yourself. Don't look at your back, see in your front, and start displaying yourself. You are the best of your own. Create your own value for yourself. That's what I want to say. Thank you so much. सोसाइटी में आज जो आपकी पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? बहुत सारे और भी आर्टिस्ट ने यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया है, वो भी want to say. Like I was already telling him that I don't know much about this industry. It's a nice platform to like showcase my work, to get confidence, because when I do it with other artists, I feel like, maybe learning from them and seeing their work, I'm getting more motivation to do better work. So hopefully I will get better with this confidence in this platform. But it's a very nice platform for people who do not have connect in this industry otherwise. So thank you for this platform. थैंक यू। आपके कैसा लग रहा है यहाँ पर कि पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे आर्टिस्ट को यहाँ पे हर तरफ से आर्टिस्ट आए हैं। लाइक आई थिंक इंडिया के हर कॉर्नर से यहाँ आर्ट वर्क लगा हुआ है, और कुछ तो आई थिंक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी आर्ट वर्क यहाँ देखने मिल रहा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी बीइंग आर्टिस्ट लाइक। थैंक यू। तो आज बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आपका आर्ट का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ने यहाँ पे अपने आर्ट को प्रेजेंट किया है। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है आपका?
हिंदी में बात करें। हिंदी इंग्लिश बोले में कंफर्टेबल। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो है इतने सालों से ये काम कर रही है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हर एक मतलब आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल है, बहुत साल से काम कर रहे हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, मेरे जैसे नए आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये मेरा पहला पार्टिसिपेशन है, प्रोफेशनली पहला पार्टिसिपेशन है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी मीटिंग में कहा कि हर कोई गांव, सिटी या शहर हो, उसकी पहचान जो है वो आर्टिस्ट से होती है। लोग आज कहीं पे भी जाइए तो आप एक आर्टिस्ट के नाम से वो शहर को जाना जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है नए आर्टिस्ट को डेवलप करने के लिए, उनको आर्ट और कल्चर इसमें रुचि लाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई एम वेरी हैप्पी बी अ पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन। और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का आई एम वेरी थैंकफुल, आर्ट कार्निवल टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आर्टिस्ट लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पे मैंने देखा कि आर्टिस्ट सिर्फ प्रोफेशनल बैकग्राउंड के ही नहीं हैं, तो जो शौकिया तौर पे जो नहीं होना चाहिए वो प्रोफेशनल तरीके से उनको प्रेजेंट करना चाहिए। तो उस तरीके के आर्टिस्ट मैंने देखे और बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। जो इंडस्ट्री को जैसे टेक्नोलॉजी अभी इंडस्ट्री में आ गई है, तो उसकी सहायता से हम लोग बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रॉब्लम्स जो आर्टिस्ट फेस कर रहे हैं, जो बहुत सालों से प्रॉब्लम आते रहे हैं उनके हाथ में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जल्दी ही एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ पे सारे आर्टिस्ट लोगों के प्रॉब्लम्स जो है विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, विल गिव अ डिजिटल न्यूज़वेयर प्लेटफॉर्म टू देम टू प्रेजेंट देयर आर्ट। थैंक यू। क्या कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? First of all, hello everyone, Namaskar. I am Arya Ambadekar. So this is my artwork. It's called Gandhi's Legacy in a Nutshell. तो ये जो है ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था गांधी जयंती के लिए, और ये मणि भवन में डिस्प्ले हो चुका है, और सेकंड टाइम भोपाल में स्वराज भवन में। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम डिस्प्लेइंग इट हियर इन बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। सो स्पेसिफिकली अबाउट बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरी है। मैं पर्सनली 2 years से ट्राई कर रही थी, बट एवरी ईयर आई जस्ट मिस द मार्क, द डेडलाइन यूज टू गो अवे ड्यू टू एग्जाम्स एवरीथिंग। तो ये साल भी शायद आई वॉज वन ऑफ द लास्ट आर्टिस्ट दैट गॉट इन टू द एग्जीबिशन। So I'm really happy. I'll invite all of you, come here and do visit, to check out my artwork and take pictures, share it. Thank you. Thank you.